Arithmetic progression practice set 3.3. Today we are going to learn sum of first n terms of AP and these formulas. Sum of first n terms of AP. In this video lesson we are going to talk about arithmetic progression, which we will be denoting by small letter AP. How to find the total of arithmetic progression up to a certain point. We call this as sum of first n terms of arithmetic progression. Let us recall arithmetic progression. Arithmetic progression is sequence. Arithmetic progression is sequence of numbers such that difference of any two successive numbers is constant. Each sequence has its own common difference, which is denoted by D. First term denoted by T1 or A. Here we will be learning how to find the sum of n numbers. Before we go to the chapter, I just want to tell you that mathematics, as I say, is available everywhere. Many times students ask me after passing their school exams, they come back and ask, "Teacher, we have learned lot of maths from you, but we did not see where this formulas are applicable. For example, sum of n terms. I have learned that, but I don't know where to apply it. We don't use it in our day-to-day life." Now, I'll give you few examples where you will be using these formulas. Right? For example, this one. Birthday. Everyone enjoys his birthday. If question is asked, how many candles you have burned on your birthdays till date, then you are stuck. So I'll provide you with one simple example, birthdays and number of candles you have burned. 1, 2, 3, 4, 5. Every year you were adding one additional candle to your cake. It is an arithmetic series of any person's age. The difference of every successive birthday is 1 year. Hence, it is an AP. So, you can get how many candles you have blown till date using this formula, which we will be learning in this chapter. And I will be happy if you try to calculate the number of candles for your friend who was born on a leap year. Now it will be very interesting for you to calculate the number of candles of a friend who was born on 29th of February, which comes only in leap year once in 4 years. Similarly, money. You give money and you know where this giving money, taking salary, you always use arithmetic progression and you will require this formula of finding the sum of n terms. That is, we'll see what I want to say. The basic principle of counting is an arithmetic progression. For example, let us see. Your final paycheck each month would be an AP if you had equal monthly increment. That means what? अगर आपके हर महीने में पगार आपकी बढ़ती है थोड़ी तो साल के एंड तक आपके पास जो पगार होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगी और जब वो इक्वल बढ़ती रहेगी तो आप पता कर सकते हैं कि 10 साल बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो ये अगर आपके पास इस फॉर्मूले का नॉलेज है तो आपकी कितनी सैलरी आएगी आज बैठकर आप 10 साल बाद की कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से टैक्सी फेयर, अब जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर फेयर दिया जाता है 18 रुपये, जो भी आपको एक बेसिक फेयर होता है टैक्सी में बैठे, ऑटो में बैठे, और फिर हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, डिस्टेंस के बाद वो फेयर बढ़ता चला जाता है। सो आप उस फेयर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इसी फॉर्मूला से, सम ऑफ n टर्म्स से। नेक्स्ट,
एलोवेरा का पेड़ दिख रहा है ना। अब इसमें कहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया? इसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू में लीफ दिखती है 1 2 3, फिर से लीफ दिखती है 3, फिर से लीफ दिखती है। इसी प्रकार से ये इसमें जब प्लांट में लीफ आती जाएगी, ये लीफ भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में ही आती है। और बेस्ट चीज, जितनी भी लीफ होती हैं, जितने भी प्लांट के अंदर, फ्लावर्स के अंदर में लीफ पेटल्स होते हैं, अगर आप उनके नंबर ऑफ पेटल्स को काउंट करने जाएंगे तो वो भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर आता है जिसको फिबोनाची नंबर बोलते हैं। आपका काम क्या है? अभी लॉकडाउन में आप खाली बैठ के टाइम पास करेंगे, उससे अच्छा आपको एक और असाइनमेंट दिया जाए, इस नंबर के बारे में पढ़िए। यू विल बी वेरी हैप्पी लर्निंग अबाउट दिस। आप नेट पे तो बैठते ही हैं, राइट? तो ये किस तरह से लीव्स अरेंज होती है और कितनी लीफ आएगी एक कंपाउंड लीफ के अंदर, वो आपको आराम से पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं ये ऐसे तो लकड़ियां बहुत सारे बार रखी होती है। अब इन लकड़ियों में जिस प्रकार से ये अरेंज है और इसके अंदर भी बहुत सी लकड़ियां हैं, तो ये कितनी लकड़ियां हैं इसको एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम वहीं बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी लकड़ियां हैं उस टाल के अंदर। टाल मतलब वो जगह जहाँ पे लकड़ियां बिकती हैं। तो एक जगह जहाँ पर हाउ मेनी लॉग्स आर देयर, you can calculate without even going and counting if they are placed properly under arithmetic progression. Now, very good and interesting story, real life story है। एक 10th स्टैंडर्ड का क्लास चल रहा था और सडनली पढ़ाते पढ़ाते उनको प्यून ने आके बताया कि आपको एचएम बुला रहे हैं। उस क्लास में एक और बच्चा बैठा था और वो जो बच्चा बैठा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कार्ल गॉस। सर ने सोचा कि अब जाना है और क्लास में बच्चे मस्ती करेंगे, तो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और सर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100 तक के लिखो और बच्चों हर नंबर को ऐड करो। और सर बस ये बताकर जा ही रहे थे कि कार्ल गॉस ने फटाक से आंसर दे दिया 5050। अब सर परेशान, इतना जल्दी कैसे निकाला? तो सर ने वापस कैलकुलेट करके देखा हुआ था, उनको आंसर मालूम था। उन्होंने कार्ल से पूछा, आपको कैसे पता चला ये? तो कार्ल ने उनको बताया कि मैंने क्या किया, मैंने एक बार नंबर लिखा 1 से लेकर 100 तक, सेकेंड टाइम भी मैंने 1 से 100 तक लिखा पर उल्टा लिखा। इस बार 1 से 100 तक पहले लिखा और सेकेंड टाइम 100 से 1 तक लिखा, फिर मैंने उनको ऐड कर दिया। अब मुझे ये मालूम था कि जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे 101 आएंगे और वो 101 कितनी बार आएंगे? 100 बार आएंगे। तो मैंने लिख दिया 101 100 बार आएंगे, तो मुझे आंसर मिला 10100। अब मैंने 2 बार 100 लिया था, इसलिए मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया और मुझे आंसर मिल गया 5050। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, मैंने इमेजिन करके उस चीज को समझकर 1 से 100 तक लिखने का सोचा। सेकेंड टाइम 101 एक बार निकाला, मुझे ये समझ में आ गया कि 100 टाइम्स आ रहा है 101, मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। और जब मैं डिवाइड कर रहा था तो मुझे समझ में आ गया था कि 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल हो गया। सर बहुत खुश हुए, उन्होंने कार्ल को बहुत शाबाशी दी और बाद में यही बच्चा बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक्टिविटी फिर से आपके लिए आ गई। सीक्वेंस को देखिए, 5 8 11 14। 5 8 minus 5 is 3, 11 minus 8 is 3, 14 minus 11 is 3. So the difference between consecutive terms is 3. Hence, the sequence is AP.
अब ये अगर AP है तो आप भाई इसी को इसी तरह से चेक करके देखिए कि सम ऑफ एटम्स, इनको पहले ऐड कर लीजिए और फिर उसके बाद जो आता है उल्टा लिखकर डिवाइड 2 से करके देखिए सेम आंसर आता है क्या। जितना आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा 360 राउंड पढ़ो, क्वेश्चन से आंसर को जाओ, आंसर से क्वेश्चन को आओ। अगर हम उल्टा काम करते चले जाएंगे, सीधा एंड देन उल्टा, दैट इज रिवर्स ऑर्डर 360 राउंड, 0 से 180, 180 से 360 विच इज कमिंग बैक टू 0। अगर हम इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे हमारा मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब यहां पर से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला क्या है, ये देखो, ये जो लिखा है ना यहां से 101 क्या था, 101 जो था वो हमको कैसे मिला, 100 प्लस 1 मिला, करेक्ट, 100 प्लस 1 मिला। सो आपने जब ये 101 और 100 को देखा तो आप इसमें से 100 कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज n टर्म्स हैं आपके पास, करेक्ट। कितने टर्म्स हैं आपके पास, 100। आपने कितने लिखे थे टर्म्स, 100 टर्म्स लिखे थे, तो n कितने हो गए आपके, 100 हो गया। n कितना हो गया, 100 हो गया। 100 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमने 2 बार लिखा है। Tn क्या था, 100 था। Tn क्या है, nth टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म यहाँ का लास्ट टर्म क्या है, 100। 1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, उसके सिंबल्स लिखेंगे अभी। 100 इज नथिंग बट द nth टर्म, हमने लिख दिया Tn। 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, इसीलिए हमने लिख दिया T1। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 1 से लेकर 100 लिखोगे तो 100 बार लिखोगे, n अपॉन 2 दैट इज 100 अपॉन 2। हमें एक फॉर्मूला मिला और इस फॉर्मूले को हमने सम ऑफ n टर्म्स बोला। सो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म multiplied by n upon 2. So if you do this, you will get the results. अब using this, आपने sum of n terms बोला, तो sum of n terms का एक symbol बनाया and the symbol is given as Sn. So now we have learned a new thing. What is that? Sum of n terms of AP, sum of n terms of AP is denoted by Sn. Sum of n terms of AP is denoted by Sn and the formula is Tn plus T1 into n upon 2. अब इसी फॉर्मूले को फिर से देखते हैं कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। हाँ, अगर हम Tn को a plus n minus 1 into d लिख दें, क्योंकि हमें मालूम है कि Tn जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा है 3.1 3.2 एक्सरसाइजेस में, a plus n minus 1 into d, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। अब हमने इस चीज को यहाँ रख देना है और T1 क्या है, T1 तो a है, तो अब हमने अगर ऐसा सब्स्टिट्यूट किया, हमने क्या किया, Tn की जगह, इस Tn की जगह हमने लिखा a plus n minus 1 into d लिख रहा है, इस Tn की जगह हमने ये फॉर्मूला डाला और ये फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d, T1 nothing but a into n upon 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये a और ये a 2a मिला, 2a plus n minus 1, ठीक है, 2a plus n minus 1 into d। अब इसका सिंप्लीफिकेशन जब हमने किया तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, राइट। सो हमें एक नया फॉर्मूला मिला Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। सो अब हमने देखा कि Tn जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d, Sn is n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Sn is also given by one more formula, n upon 2
T1 plus Tn, है ना। तो अब यहां से हमने 3 फॉर्मूले ढूंढ के निकाल लिए। अब इन तीनों फॉर्मूलेस को खुशी खुशी लिख के निकालो, ठीक है। कार्ल गॉस, वो बच्चा जिसने फटाक से निकाला था एडिशन, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 30 अप्रैल 1777 से लेकर 23 फरवरी 1855 ये समय तक जॉन फ्रेडरिक कार्ल गॉस जिंदा थे। कार्ल गॉस was a great German mathematician. He was born in a very poor family. Uneducated parents थे उनके, मगर उनके जो इंटेलिजेंस था वो उनके स्कूल में दिख गया था। और जब वहां उन्होंने टीचर्स ने उनको देख लिया था तो उसके बाद में उनको पढ़ने के लिए आगे भेजा गया। उनके फ्रेंड्स ने, उनके टीचर्स ने, उनके लोग आसपास के लोगों ने उनको मदद किया। और ये उनकी फोटो है, ठीक है। अब इनके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। इन्होंने बुक्स पब्लिश की थी और जिससे लोगों को इनके इंटेलिजेंस के बारे में पता चला। इनका कहना क्या था? इनका कहना ये था कि मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं इज क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस एंड अरिथमेटिक इज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो आप अभी अरिथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ आप चीज़ों को प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ें जब करते हैं तो ये मैथमेटिक्स की क्वीन है। और मैथमेटिक्स जो है सारे सब्जेक्ट्स का क्वीन है। तो याद रखिए, अब जब आप क्वीन को पढ़ेंगे या जब भी आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स की रानी है, ठीक है। ओके, अब आपने ये देखा है प्लेट में गुलाब जामुन रखे हैं, हनी बी ने कोम बनाई हुई है और इस प्रकार से दीवार बनी हुई है। अब ये कितनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर बार गिने जाएगा? नहीं गिनने की जरूरत है। अगर आपको मैथ्स मालूम है और आप अगर उसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, हनीकॉम्ब में भी इस प्रकार से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हनीकॉम्ब में भी अगर इसी प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और आप इनको आराम से देख सकते हैं। तो कार्ल गॉस ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी, राइट। उन्होंने कहा था इट इज नॉट द नॉलेज, उन्होंने कहा था इट इज नॉट द नॉलेज बट द एक्ट ऑफ लर्निंग, नॉट पोसेशन बट द एक्ट ऑफ गेटिंग देयर विच इज द ग्रांट ऑफ ग्रेट एंजॉयमेंट। सो एंजॉय योर मैथमेटिक्स व्हेन यू लर्न इट and you will be very happy doing it. If you learn mathematics and love the path by which you reach the results. Now, add the number from 1 to 10. Method of Gauss क्या था? 1 लिया, 10 लिया, 10 plus 1 11 आया, 2 plus 9 add किया 11 आया, 3 plus 8 add किया 11 आया। आपको कितनी बार 11 आया? आपको 5 बार 11 आएगा। Once इसी तरीके से उसी गॉस के मेथड से 1 से 10 को भी ट्राई कीजिए। आप जब इन सब चीज़ों को करेंगे एंजॉय करके कीजिए, ठीक है। उसी तरह से टैक्सी फेयर के बारे में भी सोच समझ कर आप कैलकुलेशन करेंगे जब आप टैक्सी में बैठेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम ब्रेक लेते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। आगे की न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। Let us find the sum of first 100 terms of AP. 14, 16, 18 ऐसे आपको टर्म्स दिए हुए। A दिया हुआ है 14, B दिख रहा है 2, N is 100 क्योंकि बोला है सम ऑफ 100 टर्म्स। फिर आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लिखेंगे Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। द मोमेंट आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n कितना था? 100, 100 upon 2, 2a, 2a, a is what? 14, which is the first term. यहाँ से दिख रहा है ना फर्स्ट टर्म 14 प्लस n minus 1, 100 minus 1 into d is 2। आपने ये लिख लिया। उसके बाद 100 upon 2 is 50, 2 into 14 is 28, 100 minus 1 is 99
99 into 2 is 198. 50 आपको मिला और ये है ऐड किया तो आपको मिला 226, मल्टीप्लाई किया 11300. सो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 14, 16, 18 till 100 terms is 11,300. लास्ट का आंसर लिखना बहुत जरूरी है. इस पिक्चर को देखिए. अभी जैसे कार्ल गॉस के बारे में बताया, आपको यहाँ से ब्रेथ दिखती है, यहाँ से हाइट दिखती है, यहाँ से आपको लेंथ दिखती है. इस पायरी या इस सीढ़ी का वॉल्यूम निकालिए. उसके बाद यहाँ पे उसी साइज की दूसरी सीढ़ी है, उसके बाद यहाँ पे तीसरी सीढ़ी है. अगर आप वॉल्यूम निकालते चले जाएंगे आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस मिलेगा. अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, आप निकालिए फर्स्ट टर्म. फर्स्ट सीढ़ी का मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है. इस डायग्राम को देखिए और इस पर से आप सोच के निकालिए. मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए है जो सोच सकते हैं, और बच्चों अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हम सोच पाएंगे. आप देख रहे हैं एक के बाद एक सीढ़ियां बनी हुई हैं. हर सीढ़ी की हाइट जो है वो इक्वल है, हर एक की विड्थ जो है वो इक्वल है और हर एक की लेंथ जो है वो इक्वल है. तो इस पहली सीढ़ी का वॉल्यूम निकालिए, फिर दूसरी सीढ़ी का वॉल्यूम निकालिए, फिर तीसरी सीढ़ी का वॉल्यूम निकालिए. इस तरह से वॉल्यूम निकालते आप लास्ट वॉल्यूम तक पहुंच जाएंगे. आप एक अरिथमेटिक सीक्वेंस तक पहुंचेंगे. ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ढूंढ के निकालिए. हमेशा बोला है बेटा 360 राउंड पढ़ो. अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपको बहुत मजा आएगा. और फिर सम ऑफ एन टर्म्स निकालो. यहां से काउंट करो कितने एन. ए तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया, एन आपको मालूम है, डी आपको मालूम रहेगा क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लिया रहेगा. एंड देन यू विल सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ एन टर्म्स. ट्राई कीजिए बच्चों, बहुत मजा आएगा. और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम आपको आंसर्स भी देंगे. थैंक यू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.